चलिए लेट्स स्टार्ट। हम क्या कर रहे थे? वी हैड डन सॉलिबिलिटी और फिर हमने चार इक्वेशंस की थी, वो कहीं लिखी होंगी कि वी डिड सॉलिबिलिटी, वी रोट, वी लर्न हाउ टू राइट आयोनिक इक्वेशंस। और फिर हमने फोर्थ इक्वेशन, फिर हम सॉल्ट प्रिपरेशन, ठीक है, वी हैड स्टार्टेड डूइंग सॉल्ट प्रिपरेशन, जिसके अंदर जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी वर डूइंग कि सॉल्ट प्रिपरेशन के अंदर मैंने कहा था कि देयर फोर बेसिकली फोर मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ सॉल्ट। मेटल प्लस एसिड, जिसके अंदर यू कांट यूज ऑल द मेटल्स। बेस प्लस एसिड, जिसमें ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। कार्बोनेट प्लस एसिड, और फिर द फोर्थ वन वाज अमोनिया प्लस एसिड। दिस वन वाज स्पेसिफिकली फॉर अमोनियम सॉल्ट्स। अच्छा, एनीवे, सो ये हमने सीखा था कि इफ यू बीइंग आस्क्ड टू prepare a particular salt, so you can figure out the reaction. For example, copper sulfate prepare करना है, तो it's going to be metal plus acid, base plus acid, और carbonate plus acid. uh, और उसके अंदर मेटल वाले के अंदर बस इशू होता है कि you can't use all metals in that particular reaction. By just looking at the salt, you can figure out the formula of the acid. ठीक है, if you want to prepare copper sulfate, then the formula of the acid is going to be H2SO4. अगर ऊपर जैसा NaCl प्रिपेयर करना है, तो the salt, sorry, the acid that's going to be used would be HCl. अच्छा, फिर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के, लेबोरेटरी मेथड के, how would you figure out के how would you mix the reactants and how would you carry out the reaction? We figured out the reaction. ठीक है, we were on the next part के what method of preparation, how would you prepare it in the lab? So the first one was excess method के, if you, and this method would be applied if the salt you're trying to prepare is a soluble salt and the reactant is insoluble. तो हम ये कर रहे थे, तो उसकी एग्जांपल ये थी कि I was trying to prepare MgCl2, which is a soluble salt. ठीक है, if you look at the table of the solubility, उसके अंदर Cl minus one वाले compounds जो होते हैं, they're all soluble except for silver and lead. तो what happened over here was कि your reactant was actually insoluble. It was Mg which was soluble, which was a solid. ठीक है, that was an insoluble reactant, while the salt that you were trying to prepare was a soluble salt. ठीक है, तो मेथड आप डिटरमिन नहीं करते, मेथड इक्वेशन ही डिटरमिन करेगी कि इक्वेशन में जो सॉलिबिलिटी होगी सब्सटेंसेस की, दैट इज गोइंग टू डिटरमिन व्हाट व्हिच मेथड वुड यू यूज. The excess method would only be used if the salt you're trying to prepare is a soluble salt and the reactant that you're trying to use to prepare that salt, that's an insoluble reactant. जिसका मैग्नीशियम यहाँ पे सॉलिड है. यहाँ तक क्लियर था मास? एम दिस इज क्लियर? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे we just pretty much left it के how would you prepare the salt? It was magnesium का piece पकड़ो, magnesium is a metal, put that metal piece in hydrochloric acid, HCl. So HCl is your solution. So add magnesium to HCl. That's the first step, ठीक है? And you're going to be asked about the steps. So make sure every time excess method would be exactly the same. कि add excess Mg, ठीक है? So you're going to add excess magnesium to hydrochloric acid, which is aqueous. ठीक है, and वो Mg के साथ भी लिख लेते हैं कि Mg is a solid. So you're going to add excess Mg to HCl, HCl aqueous. अच्छा, पर्पस क्या है कि Mg को ज्यादा डालना है, Mg को सॉलिड को, रिमेंबर एक्सेस मेथड के अंदर it's always the solid reactant that's added in excess. Now the reason the solid reactant is added in excess is कि ये जितना ज्यादा डालोगे ना Mg, तो HCl would completely react. मतलब they would be, क्योंकि if you add less Mg, तो HCl बच जाएगा, ठीक है? There would be some HCl that would be left at the end of the reaction. So you don't want HCl to be left at the end of the reaction because the problem is जो salt produce हो रही है ना, that's being produced in the solution. ठीक है, MgCl2 is aqueous. So when Mg reacts with HCl, the salt is produced in the solution. You don't want anything else in the solution. You want a pure salt.
So you have to somehow get rid of the HCl, and the only way you can get rid of the HCl is कि वो completely react कर जाए. तो आप इतना Mg डालो, keep adding Mg. इतना Mg add करो कि आखिरी molecule, the last molecule of HCl also reacts. So add excess Mg to HCl. And how would you know कि आपने excess डाला है? तो keep adding Mg. अच्छा, so keep adding Mg until you run out of HCl. ठीक है, keep adding Mg solid. अच्छा, once HCl is gone, तो ये bubbles बनना बंद हो जाएंगे. H2 gas would not be produced. I mean, you're going to run out of HCl. ठीक है, इतना Mg डालना है कि HCl खत्म हो जाए, so there would be no reaction. The reaction would stop. So so that is one indication that you've added too much Mg. So keep adding Mg until no more bubbles of H2 gas are seen. So no more effervescence, or you can call it bubbles of H2 gas. अच्छा, so एक सेकंड इसको साइड पे. So no more bubbles or of H2 gas. H2 gas is seen. Or there could be another way that would indicate that Mg is in excess. क्योंकि आप इतना Mg डालो कि it remains undissolved at the end of the reaction. Because if you add less Mg, all of the Mg would react. So this metal piece would disappear. If you add too much Mg, then HCl would disappear. All the HCl would be gone, but the Mg would still be left at the end of the reaction. So another method would be that or Mg remains undissolved. यानी एंड में ना Mg पड़ाओ, इतना ज्यादा ऐड करो. ठीक है, so there are two ways of adding more Mg. अच्छा, so HCl is gone. All this HCl has reacted. So how would you remove the Mg? Remember, Mg is a solid. So solid को simple filter, ठीक है, उसको simple filter out कर लो. तो filter out excess. और अगर वो बड़ा पीस है Mg का, तो उसको तो सिंपल हाथ से पकड़ के आप बाहर निकाल लो. ठीक है, so filter out excess Mg solid. तो ये जो Mg solid है, इसको हम उठा के बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, तो let's say this Mg solid इन आयंस को वापस अंदर भेज दें. MgOCl जो है वो सोल्यूशन के अंदर है. ठीक है, तो हमने वो जो एक्स्ट्रा Mg है वो सारा बाहर निकाल दिया. अब पीछे क्या है? The remaining thing is it's a solution of MgCl2. That's a salt, only pure salt. ठीक है, all the acid is gone. So the final thing you have, हाँ, सर आयंस भी साथ नहीं होंगे Mg के, वो जो सॉलिड वो मतलब वो तो खत्म हो जाना चाहिए ना, क्योंकि MgCl बन गया. कौन सा क्या खत्म हो जाना चाहिए? सर ये अभी हमने ये जो Mg बनाया ना, नहीं, Mg बनाया नहीं है. Mg तो हमने ऐड किया था HCl के अंदर ना. बना तो हम MgCl2 रहे थे, तो वो सोल्यूशन के अंदर MgCl2 aqueous बन गया ना. ओके 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 ठीक है वो सर. हमने Mg डाला बहुत ज्यादा था, एक्सेस पे डाला हुआ था ना, तो Mg बच गया एट द एंड ऑफ द डे. ठीक और है, सर ये जो एफर्वेसेंस है, ये किसके एफर्वेसेंस निकलते हैं? HCl के. H2 गैस बन रही है ना. एफएफएसएस बबल्स को कहते हैं ना. बबल्स किसके बन रहे हैं? गैस के. तो H2 गैस फॉर्म अच्छा हो रही है. मतलब जैसे ही तुमने Mg को HCl में डाला था, तो क्या हुआ था? सॉल्ट बनना शुरू हो गई थी MgCl2, और H2 गैस बनना शुरू हो गई थी ना. ओ तो, ओके. तो उसके बबल्स. Mg आपने ज्यादा डाला है ताकि ऑल द HCl इज गॉन. सारा का सारा HCl रिएक्ट कर जाएगा, और वो जो बचा हुआ Mg होगा उसको आप रिमूव कर लोगे. नाउ द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. कि अक्सर वो क्वेश्चन के अंदर दे आस्किंग फॉर प्योर ड्राई क्रिस्टल्स. तो नाउ यू हैव अ सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 एट द एंड. तो क्रिस्टलाइजेशन किस तरह करते हैं? Evaporate the solution to saturation point.
ये in this case it's going to be the filtrate, जो कि हमारा MgCl2 aqueous है, ठीक है, क्योंकि H2 गैस तो सारी उड़ गई, HCl सारा खत्म हो गया और वो जो Mg था वो हमने रिमूव कर दिया. So evaporate the filtrate to saturation point, or you can call it the crystallization point. Then you cool gradually to obtain crystals. And once you have these crystals, cool gradually to obtain crystals. Filter out the crystals that are formed. So filter out crystals formed and dry them in sunlight. अच्छा, so ये जो last part है ना, that's very important. ठीक है, ये हमेशा last part. It's going to be crystallization, क्योंकि at the end of the day you're getting a solution. You're not getting crystals. So that's the entire excess method. हर दफा it's going to be the same thing that's going to be written, no matter what the reaction is. The method would be exactly the same. ठीक है, always the solid reactant is in excess. ठीक है, in any reaction जिसके ऊपर excess method apply करता है, always the solid reactant is always kept in excess. So solid reactant is always is in excess always. ठीक है, ये क्लियर है सारों को? Excess method. इसके और एग्जांपल्स करते हैं, बट इज दिस क्लियर? फराज क्लियर है? जी. ठीक है, बाकी मुर्जा, अमानुल्लाह, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, सो अच्छा, जस्ट रिमेंबर कि एवरी टाइम you're going to write the same thing. ठीक है, डोंट ट्राई टू राइट everything in your own words. ठीक है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी वगैरह मैटर करती है. So the only thing is you probably can only change a few things, which is one of the things is that the reactants could be changed. Whenever you describe crystallization, it should be described in the same way. ठीक है, that's always the way it's going to be described. अच्छा, एक और रिएक्शन कर लेते हैं, excess method. ठीक है, now further examples. Let's say the question states के make pure dry crystals of copper sulfate. ठीक है, that is the question कि copper sulfate के pure dry crystals बनाओ. अब how would you, पहली चीज आपने क्या figure out करनी है कि what equation should you use? Now you have plenty of equations. copper sulfate बनाना है ना, तो पहले बताओ कि कौन सा एसिड यूज करूं copper sulfate बनाने के लिए? H2SO4. ठीक है, तो वो obviously H2SO4 है. अच्छा, एसिड प्लस क्या करूं तो ये बनेगा? मतलब तीन ऑप्शंस है. कॉपर. अच्छा, एक तो मेटल कर लो, मेटल प्लस एसिड. तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? No. ठीक है, ये नहीं करना क्योंकि मैजेट मेटल्स कौन से यूज करने, सिर्फ मैजेट. ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन तो नहीं कर सकते. अच्छा, और कौन सा, ये खैर हमने वैसे ऊपर भी किया था. कॉपर सल्फेट बनाने के लिए यू कुड यूज H2SO4. एसिड तो H2SO4 ही होगा, but you could use a metal oxide or a hydroxide, a base. ठीक है, तो वो यूज कर सकते हो और प्लस वाटर बन जाएगा, राइट? तो और तीसरा एक रिएक्शन कर सकते हो, which is to make copper sulfate you could use again H2SO4 or carbonate plus acid, तो copper carbonate plus water plus carbon dioxide would be is going to be produced. ठीक है, now in both these reactions you're getting the salt. ठीक है, पहला रिएक्शन नहीं कर सकते सिवाय पहले के, ये दोनों रिएक्शंस कर सकते हो. अच्छा, इसको पिक कर लेते हैं कि पहले तो ये देखना है कि इस पे एक्सेस मेथड अप्लाई होता भी है कि नहीं होता. एक्सेस मेथड कब यूज करना था? व्हेन द सॉल्ट दैट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इज सॉल्युबल.
तो सल्फेट्स का जाके देखो, सॉल्युबिलिटी टेबल में सल्फेट्स का लिखा हुआ है कि वो सॉल्युबल होते हैं। ऑल सल्फेट्स SO4-2 आर सॉल्युबल एक्सेप्ट वो 3-4 थे, सिल्वर, लेड, बैरियम और कौन सा था, स्ट्रोंशियम सल्फेट, ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट। ये 5 थे जो जिनके साथ इशू था, बाकी सारे सॉल्युबल हैं। So copper sulfate is soluble. So it's a soluble salt that you're trying to produce. अच्छा, ये तो बाय डिफॉल्ट एसिड वैसे ही aqueous है। कॉपर कार्बोनेट, कार्बोनेट सारे इनसॉल्युबल होते हैं सिवाय ग्रुप 1 के। ग्रुप मतलब सॉल्युबिलिटी टेबल में ये लिखा हुआ है, कार्बोनेट्स आर ऑल इनसॉल्युबल, कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स आर ऑल इनसॉल्युबल except those in group 1. So you have an insoluble reactant. तो इसका मतलब है कि आप एक्सेस मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि you're trying to prepare a soluble salt from a reactant which is insoluble. तो एक्सेस मेथड अप्लाई करोगे और एग्जैक्ट वही बातें लिखना शुरू कर दो कि आप क्या करोगे कि आप यूल टेक H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड पकड़ो, ठीक है, यू हैव टू रिएक्टेंट्स, वन इज H2SO4, तो हेज योर H2SO4, उसके अंदर ना कॉपर कार्बोनेट ऐड कर दो। कॉपर कार्बोनेट मार्बल की तरह ना, इट्स एन इनसॉल्युबल सॉलिड, तो ये उसकी ना कॉपर कार्बोनेट की ना पीसेस होंगे। मतलब कॉपर कार्बोनेट जो होता है ना, दैट्स ग्रीन इन कलर। वो अगर मैं दिखाऊं, इसका कलर भी याद रखना है कॉपर कार्बोनेट का। इट्स दिस वन जो यहाँ पे नजर आ रही है, तो खैर पाउडर्ड फॉर्म में क्रश हुआ हुआ है, probably more like this, ठीक है, जो सॉलिड रॉक टाइप होता है। सो दैट्स कॉपर कार्बोनेट, इट्स इनसॉल्युबल। तो आपने ये पकड़ना है और इसको बीच में ना, ये कॉपर कार्बोनेट के ग्रीन, बल्कि ग्रीन होना चाहिए था, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये ग्रीन पीसेस जो है ना कॉपर कार्बोनेट के, आपने बीच में ऐड कर दिए। अच्छा, जैसे ही ऐड किया तो रिएक्शन शुरू हो गया। रिएक्शन शुरू हुआ है तो क्या बनना शुरू हो गया, कॉपर सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। Immediately the first thing you would notice is you're going to see bubbles of carbon dioxide gas that are forming. So immediately you will start seeing lots and lots of bubbles forming. कि आपका कॉपर कार्बोनेट जो होगा ना, वो डिसॉल्व करना शुरू हो जाएगा, इट वुड स्टार्ट फॉर्मिंग CuSO4। तो वो सारा CuSO4 सॉल्ट जो है ना, वो सोल्यूशन का पार्ट बन जाएगी और वो एक्वस स्टेट में वो डिसोसिएट हो जाएगी। सो ऑल द Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस आयंस CuSO4 बन जाएगा, ठीक है, वो बनना शुरू हो जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स बनेंगे, प्लस वाटर भी बनेगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि कॉपर कार्बोनेट जो इनसॉल्युबल रिएक्टेंट है, उसको एक्सेस में ऐड करना है। The purpose of adding that in excess is कि सारा सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, वो खत्म हो जाए, so that your solution no longer has sulfuric acid, or at the end of the day it only has copper sulfate that is produced. तो मतलब कॉपर कार्बोनेट सारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको खत्म कर देगा, उसको आप एक्सेस में ऐड करोगे, so each one of the sulfuric acid molecules, they're going to get used up. और तो आप वो पूरा मेथड लिखना शुरू कर दो, एग्जैक्ट डिटो कॉपी है उसी का जो आपने पहले लिखा है। सो इट इज कि ऐड एक्सेस कॉपर कार्बोनेट, so add excess copper carbonate to H2SO4, and how would you know कि it's an excess? Keep adding जब तक वो सल्फ्यूरिक एसिड खत्म ना हो जाए, यानी वो रिएक्शन रुक ही ना जाए, ठीक है, because once the sulfuric acid is gone, the reaction would stop, so you won't see any bubbles forming. So keep adding, आप बस ऐड करते रहो, keep adding copper carbonate until it remains undissolved, because all the sulfuric acid is gone, so it has nothing to react with. Or effervescence stops. So there is no more effervescence. फिर वो जो बचा कुचा जो एक्स्ट्रा आपने कॉपर कार्बोनेट डाला है, वो उसे फिल्टर आउट कर दो। तो फिल्टर आउट excess copper carbonate which is a solid, ठीक है, अगर बड़े पीसेस होंगे वैसे ही हाथ डाल के आप बाहर निकालो, फिल्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं होगी।
अच्छा, and the last part is once these green crystals are also out, इनको पकड़ के आपने बाहर निकाल लिया एक्स्ट्रा, ठीक है. So the copper carbonate excess has been taken out. सल्फ्यूरिक एसिड वैसे ही खत्म हो गया, तो पीछे अब सोल्यूशन के अंदर there's only copper sulfate जो आपका प्रोडक्ट सॉल्ट प्रोड्यूस हुई है. So the last step is crystallization, कि आप उसको crystallize करो, which is going to be the same thing. आपने खाली word crystallization नहीं लिखना, पूरा process describe करना है कि evaporate the solution to saturation point, यानी आप पानी बीच में से evaporate करते हो, तो evaporate the solution to saturation point, and then cool gradually to obtain crystals. Then you filter out the crystals and you dry them in sunlight. So you dry them in sunlight. तो ये एग्जैक्ट आपने वही चीज लिखी है, ठीक है, इट्स नथिंग डिफरेंट. तो आपने अगली दफा बस ये करना है कि आपने बस ये चीज कॉपी करनी है. Whenever you see an equation where the salt that's being produced is soluble and the reactant is insoluble, the method would be excess method. कि add excess solid को excess में डालो, और तब तक ऐड करते रहो जब तक it remains undissolved, यानी वो एंड में बच जाए, ठीक है. That means the other reactant is completely used up. फिर उसको फिल्टर आउट कर लो, वो जो एक्स्ट्रा आपने ऐड किया था, फिर जो सॉल्ट बनी है उसको आपने सिंपल क्रिस्टलाइज करना है. सो इट्स ऑलवेज द सेम 2-3 स्टेप्स दैट नीड टू बी डन. अच्छा, इधर मैं एक वो चीज ऐड कर दूं कि एंड में ना देयर माइट बी सम नुएंसेस के देयर इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट. अच्छा, व्हाट्स अ हाइड्रेटेड सॉल्ट? इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. यानी सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, द क्रिस्टल्स contains some water. ठीक है, that's called a hydrated salt. यानी you might get copper sulfate dot 10H2O. 10H2 indicate करते हैं crystal के अंदर ही ना there are water molecules that are trapped inside the crystal. So that's known as a hydrated salt. As sometimes they're looking for, most of the time they're looking for hydrated salts. Hydrated salts are usually obtained जब आप ड्राइंग का जो प्रोसेस है ना उसको कंप्लीटली मतलब अच्छे तरीके से ड्राई ना करो, तो बीच में ना थोड़ा बहुत पानी जो होगा, जैसा अक्सर वो देखा होगा ना कि आपका जो इवन टेबल सॉल्ट है, इफ देयर इज मॉइस्चर तो वो सॉलिडिफाई कर जाती है, तो उसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है. यूजुअली ऑब्टेन व्हेन ड्राइंग इज नॉट कंप्लीट. मतलब एग्जांपल वो कि यू ड्राई इट थ्रू फिल्टर पेपर्स और सनलाइट. ठीक है, तो मतलब सनलाइट और फिल्टर पेपर्स के थ्रू ना, फिल्टर पेपर इज लाइक अ वेरी एब्जॉर्बेंट मटेरियल, तो इट कैन ड्राई सब्सटेंसेस. So you can obtain a hydrated salt in this method. I said then sometimes they might ask for an anhydrous salt. Anhydrous salt के जो crystals होते हैं ना उसके अंदर एक भी water का molecule नहीं होता. यानी copper sulfate होगा तो सिर्फ copper sulfate होगा, nothing else. There would be no water of crystallization. यानी the crystal would be completely devoid of water. Moisture कोई नहीं होगा.
अच्छा, so they're not going to have any water of crystallization. अच्छा, how do you obtain an anhydrous salt? You heat it in oven. उसको अच्छे तरीके से ना आग के ऊपर आप पकाते हो, ठीक है? Heat it in oven, ठीक है? तो आपका जो ड्राइंग होगा ना, that would be more complete. तो ये मैं बस लास्ट वाला पार्ट कह रहा हूँ कि if they're asking for a dry salt crystal, तो अगर तो उसने कोई चीज नहीं पूछी हुई, उसने बस कहा है कि क्रिस्टल्स दे दो ना, उसने कहा है कि हाइड्रस बताओ या एनहाइड्रस बताओ, तो जिस मर्जी तरीके से ड्राई करो, डजंट रियली मैटर, क्योंकि ही वाजंट वेरी स्पेसिफिक. बट समटाइम्स दे आर वेरी स्पेसिफिक, समटाइम्स दे आस्क फॉर एनहाइड्रस सॉल्ट. तो जो लास्ट स्टेप नहीं है ड्राइंग वाला, इसके अंदर फिर आपको अवन के अंदर ना उस सॉल्ट को हीट करना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर से सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बीच में से निकल जाए. ठीक है? इज दिस क्लियर जीनिया? इज दिस क्लियर? अमानुल्लाह, मुर्जा? जी सर. अच्छा, so this is excess method. अब एक काम करो सारे, कि सर हाँ जी, सर वो मैंने ऊपर से एक चीज समझनी थी, वो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मैंने रोका. क्या? सर वो जो एफर्वेसेंस वाला पार्ट नहीं है, मुझे समझ नहीं आया सर. एफर्वेसेंस स्टॉप वो आपने बताया, लेकिन अभी भी नहीं है. नहीं, देखो वो शुरू में क्या हुआ था, सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ था. मतलब इसको मैं फिर से डायग्राम में बनाऊं ना, मतलब ये कॉपर सल्फेट तो प्रोडक्ट है ना, ठीक है, जो बाद में बना था. जी सर. बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ था और मतलब कोई बबल्स नहीं थे, ठीक है, बबल्स भी नहीं थे. उसके अंदर आपने ना ये कॉपर कार्बोनेट का पीस ना बीच में ऐड कर दिया, ठीक है. तो ओके सर. वो ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है, क्या होना शुरू हो जाएगा एकदम से, मतलब क्या नजर आएगा आपको? प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे ना. क्या बनेंगे? जी सर. कार्बन कॉपर डाइऑक्साइड. सल्फेट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बनेगी तो उसके बबल्स नजर आएंगे कि वो गैस है, ठीक है. अच्छा, अच्छा. बाकी कॉपर सल्फेट भी बनेगा, तो कॉपर सल्फेट तो एक्वस है ना, वो तो सॉल्युबल है, तो कॉपर 2+ आयंस और सल्फेट आयंस वो सारे सॉल्यूशन के अंदर आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. तो ये कॉपर सल्फेट बन रहा है प्लस वाटर. वाटर तो वैसे ही है वहां पे, वो तो पहले भी था, बाद में बन भी गया, कुछ नहीं होगा, ठीक है. ये क्लियर है? जी सर. अच्छा, फिर मैंने कहा था कि कॉपर कार्बोनेट जो इनसॉल्युबल रिएक्टेंट है ना, उसको एक्सेस में डालना है, जो सॉलिड है ना उसको एक्सेस में डालना है, कि उसको इतना ज्यादा डालो कि सल्फ्यूरिक एसिड जो डाला था ना शुरू में, वो सारा का सारा खत्म हो जाए, ठीक है. तो अब मुझे ये बताओ, ओके. सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो गया, तो अब बबल्स बनेंगे? मतलब कॉपर कार्बोनेट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था ना, जब आपका जी सर. आखिरी मॉलिक्यूल भी सल्फ्यूरिक एसिड का, आप क्योंकि आपने एक्सेस में डाला ना, आप डाली जा रहे हो कॉपर कार्बोनेट, आप डाली जा रहे हो, जब आखिरी मॉलिक्यूल भी कॉपर कार्बोनेट का रिएक्ट कर जाएगा, तो द बबल्स वुड स्टॉप, क्योंकि अब तो कोई गैस नहीं प्रोड्यूस होगी ना. क्लियर है? सर ये लास्ट पार्ट फिर से बता दें, ये नहीं समझ आया. नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो गया ना, मुझे तो कॉपर कार्बोनेट किस चीज के साथ रिएक्ट करे? हाँ हाँ हाँ, मतलब हाँ ठीक है, फिर कोई चीज नहीं ना रही. मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ही खत्म हो गया ना, वो हमारा जी टारगेट ही जी. था कि सल्फ्यूरिक एसिड सारा खत्म हो जाए, ठीक है. तो अब तो कार्बन ओ. डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगी ना, तो वो इंडिकेशन होगी, क्योंकि हम यही चाह रहे थे ना कि सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट हो, सोल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड सारा का सारा खत्म हो जाए, ठीक है, इट ऑल गेट्स यूज्ड अप. तो अच्छा अच्छा. ये वो इंडिकेशन होगी कि हाँ भी अब आपने ना कॉपर कार्बोनेट बहुत ज्यादा डाल दिया, ठीक है. ठीक है. तो अब वो जो एक्स्ट्रा कॉपर कार्बोनेट है ना, उसको उठा के ना बाहर निकाल दो. सिर्फ मतलब हम कॉपर कार्बोनेट अगर तब तक ऐड करें जब तक सल्फ्यूरिक एसिड खत्म नहीं हो जाता, तो वो भी एक्सेस कहेंगे. हाँ, तो वो एक्सेस है ना, क्योंकि आप कॉपर कार्बोनेट अच्छा. जरूरत से ज्यादा ही ऐड करोगे ना, तब वो इंश्योर होगा कि एग्जैक्ट, देखो रियल रियल वर्ल्ड में एग्जैक्ट अमाउंट डालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप काउंट ही नहीं कर सकते एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह, ठीक है, इट्स वेरी हार्ड टू काउंट देम. तो आप यही करोगे कि आप कॉपर कार्बोनेट को इतना ज्यादा डालो, एक्स्ट्रा डालो, ठीक है, डाली जाओ,
कि जब वो बबल्स बनना जी बंद हो जाए, बबल्स बंद बंद हो गया, उसका वो इंडिकेशन है कि हाँ सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो अब खत्म हो गया सारा का सारा। ठीक है। ओके सर, थैंक और वो जो एक्स्ट्रा कॉपर कार्बोनेट है वही आप उसमें भी कर रहे थे मैग्नीशियम वाले रिएक्शन के अंदर भी, कि उसके अंदर भी बबल्स बन रहे थे H2 गैस के। तो आप क्या कर रहे थे कि Mg बीच में इतना डालो Mg कि HCl सारा खत्म हो जाए। HCl खत्म हो गया तो H2 गैस बनेगी नहीं, फिर बबल्स बनना बंद हो जाएंगे। ठीक है। और फिर वो आप Mg को बाहर निकाल लो, वो जो एक्स्ट्रा डाला हुआ है। ठीक है। अच्छा सो ओके। अच्छा अब ये करना है कि मैं 2 सॉल्ट्स प्रिपेयर करने को कह रहा हूँ। करनी इनमें से एक प्रिपेयर है, एक NaCl है। ठीक है, लेट्स से पहली वाली। और द सेकंड वन, बल्कि NaCl की बजाय, क्योंकि NaCl तो हम पहले ही कर चुके हैं। लेट्स थिंक ऑफ K2SO4। And the second one that I want you to prepare is MgNO3 twice, magnesium nitrate. अच्छा, first thing, number 1 A, write the equation. खुद सोचो, तीन रिएक्शंस आपके पास, मेटल प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड, कार्बोनेट प्लस एसिड, तीनों मेथड्स जो है वो सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। जो भी अप्रोप्रिएट मेथड, मतलब जो इक्वेशन होगी वो लिख लो। तो राइट इक्वेशन फॉर द अबव प्रिपरेशन। ये सॉल्ट प्रिपेयर करनी है, ये प्रोडक्ट है आपका। ठीक है। सर, हाँ, हमने तो अभी तक एक ही पढ़ा है, एक्सेस मेथड। तो वही मैं कह रहा हूँ ना। सेकेंड है कि इनमें से आइडेंटिफाई कि विच वन इज गोइंग टू बी एक्सेस मेथड। इनमें से ना एक जो है वो किसी और मेथड से होगा, एक जो होगा वो एक्सेस मेथड से होगा। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फुली द सॉल्ट दैट वुड बी प्रिपेयर्ड यूजिंग एक्सेस मेथड। पहले तो दोनों की इक्वेशन लिखो और मुझे भेजो कि दोनों को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा। और सॉलिबिलिटी टेबल भी देख लो। ये मैं ये वाला बोर्ड भी मैं सेंड कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो ये बैठ के मैं वेट कर रहा हूँ उस पर। फर्स्ट थिंग, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, प्लस वाटर। ठीक है। ठीक है, इक्वेशन इक्वेशन तो ठीक है, इसको बैलेंस भी कर लो। ये 2 होगा और ये आई थिंक वाटर भी 2 होगा। ठीक है। एक और रिएक्शन भी हो सकता है कार्बोनेट वाला, मेटल वाला नहीं होगा। ठीक है। जी, कार्बोनेट वाला भी नहीं हो सकता, क्यों? सारे सॉल्युबल। हाँ, मतलब वो नहीं है कि अब मेथड, मतलब इक्वेशन तो हो सकती है, मेथड नहीं होगा, क्योंकि के ग्रुप 1 के सारे कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। तो ग्रुप 1 ऑल कंपाउंड्स आर सॉल्युबल। एसिड वैसे ही सॉल्युबल होता है। तो मतलब ये तो क्लियर हो गया कि दिस इज नॉट एक्सेस मेथड। मतलब इसको, मतलब कोई और मेथड होगा, एक्सेस मेथड नहीं है। क्लियर है ये? तो सर ये आपने कहाँ पे बताया था कि मतलब हम मतलब पोटेशियम को ये मेजर्ड वाला जो आपने बताया था, हाँ, मतलब इसे इक्वेशन का सही क्लियर नहीं है, मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं क्या चीज कि तीन सही आपने। हाँ जी। तीन रिएक्शंस है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 4 रिएक्शंस है एक्चुअली। ये ओ 4 ओके ओके। मेटल प्लस एसिड बन सकता है। तो अब पोटेशियम सल्फेट बनाना है तो एसिड कौन सा होगा? H2SO4 होगा।
मेटल कौन सा होगा? पोटेशियम होगा, लेकिन पोटेशियम इसमें नहीं आ रहा, तो इसलिए वो वाला रिएक्शन नहीं हो सकता। बेस में मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो तुमने बनाया, ठीक है। या फिर जी तीसरा हो सकता था पोटेशियम कार्बोनेट वाला, ठीक है। तो अच्छा, खैर, द पॉइंट इज कि दिस इज नॉट एक्सेस मेथड। मैंने कहा था आइडेंटिफाई, उस वाले को आइडेंटिफाई करना है जो एक्सेस मेथड से बने। तो कोई मुझे मैग्नीशियम नाइट्रेट का बता दे कि उसकी क्या क्या इक्वेशन होगी मैग्नीशियम नाइट्रेट की। एनीवन? Zenian, have you done this, Murza? क्या होगा? किसी ने किया अभी तक? Yeah, we'll do it with the HNO3. ठीक है, एसिड वुड बी HNO3, क्योंकि NO3 आ रहा है तो HNO3 होगा। अब क्या है, 3 ऑप्शंस है, मेटल प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड, कार्बोनेट प्लस एसिड। तो मेटल कौन सा यूज करोगे? मेटल नहीं यूज कर सकते वो, मैं नहीं यूज कर सकता। मैजिक के अंदर है ही मैग्नीशियम के लिए, तो H2 गैस बनेगा, तो वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर बाकी भी कर सकते हो कि बेस में क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सर हाँ, सर अगर आपने अभी 3 फॉर्मूले हमें पढ़ा है ना, तो अगर हम जैसे आपने अभी इधर एक ही यूज किया है, जरूरी है तीनों यूज करना और फाइंड करना, नहीं, या फिर एक एक ही एक 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 ही रिएक्शन करना है ना, तो वो तीनों में से कोई एक कर। जैसे जैसे ये पहले वाला सॉल्युबल है, हो सकता है कि दूसरा वाला तीसरा वाला सॉल्युबल ना हो, या फिर तीनों ही सॉल्युबल हो। नहीं, तीनों डिफरेंट रिएक्शंस है ना, तो तीनों का अलग से सोचना पड़ेगा ना। नहीं, जैसे पहले वाले में एक्सेस मेथड यूज हो सकता है, फिर हाँ, दूसरे तीसरे में भी हो सकता है, या फिर नहीं होगा, वो दूसरे तीसरे को उसी या तरह देखना, चेक। चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा से। तो पहले वाले में तो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि Mg इज अ सॉलिड, ये एक्वस है, और जो सॉल्ट बन रही है NO3 वाले सारे कंपाउंड्स एक्वस ही होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला तो डेफिनेटली एक्सेस मेथड है, क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट है, एंड द रिएक्शन दैट्स बीइंग यूज्ड इज इनसॉल्युबल। दूसरे वाले में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल, इट्स अ सॉलिड, और जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही है वो तो उसमें भी एक्सेस मेथड यूज होगा। और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स भी सारे इनसॉल्युबल ही होते हैं, तो वो भी एक्सेस मेथड ही होगा। तीनों में सॉल्ट वही सॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही है, बट फ्रॉम इनसॉल्युबल रिएक्टर्स। तो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मुझे लिख के जरा भेजो, ठीक है। क्लियर? आपने इन तीनों में से एक रिएक्शन लिखना है, तीनों नहीं लिखना है, ये तीनों अलग अलग रिएक्शन, आपने सिर्फ एक लिखना है और उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, कि उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देना है, ठीक है। चलो ठीक है, ये मुझे भेजो उस पर व्हाट्सएप के ऊपर। आई एम वेटिंग फॉर दैट। यहाँ से मैं फिर बंद कर रहा हूँ क्लास, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।